Good evening, everyone. So we have Mr. Vikas Kumar today as the person. He'll be taking you today and teaching you on Discourse 15, and we can then just start the session. So over to you. Thank you so much, Sanskriti. So it has been always a pleasure to interact with you all, as we have discussed many topics. Lately, we have discussed ethics. And am I audible? Please confirm once, then I will go on. Yes, you're audible. Thank you. And you can see me as well? Yes. Okay. So I was saying that we have done many classes till now. With me, few classes, few recorded classes, and at the same time, some classes with other teachers. And till now, you must have understood so many theories propounded in the search of happiness and things associated with happiness. So today, as you can see on my screen, we will be discussing some few more interesting things. And this topic is very near to my heart, because you will understand while we will talk in this interactive session. And today I will try my best to interact more of, not only that I will be speaking from one side. So this Discourse 15, as you can also see some part of it on my screen, talks about that how intelligence is important. And intelligence in the traditional sense, as we know, कैसे वो उसकी परिभाषा भी समय के साथ बदली है, और कैसे दूसरे चीजें उसमें इंक्लूड हुई हैं, और समय के साथ उन बदलावों के होते हुए हमारे जो मानवीय विकास है उसमें इंटेलिजेंस की भूमिका कैसे बढ़ती रही है। तो इन सब विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, और अंततः हमारा उद्देश्य ये होगा कि कैसे, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो, हैप्पीनेस या आपकी आत्मिक शांति या आपके आनंद को कैसे बढ़ाएं। तो इस पर भी हमारा गौर साथ साथ रहेगा। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आज गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा और आप लोगों ने सुना होगा दैट people have their own understanding about intelligence, and they connect it with IQ that they have, intelligence quest, जिसमें हम ये देखते हैं, you can see on my screen as well, कि जब भी इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि लोगों में एक ये चीजें आ जाती हैं कि हम इंटेलिजेंस एक खास तरह की जो दिमागी क्षमता है उससे हम मापने की कोशिश करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि इंटेलिजेंट व्यक्ति वह आदमी है या वह औरत है जो कुछ खास कामों को बहुत ही एफिशिएंटली कर लेता है, जो कि काफी हद तक कई लोगों के अनुसार बहुत ठीक भी है ये परिभाषा, लेकिन ये सीमित परिभाषा है। दिस इज अ वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलिजेंस. And with the time passing on, many philosophers, not only the philosophers, but psychologists and few scholars of different fields have contributed in this, in this way of understanding intelligence. और हम लोगों को कुछ जो नई चीजें कुछ पिछले दशकों में पता चली हैं, उसमें गार्डनर्स की एक थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है. Though not all the scholars are agree with this, that they say that this is a very broad understanding of intelligence, और intelligence की इतनी broad जो understanding है उसमें कहीं ना कहीं हम इतने विस्तारवादी हो जाते हैं, इतने broad हो जाते हैं कि हम उसके मूल पर हमारा ध्यान नहीं रहता. तो इस तरह की बात भी लोग कहते हैं किसको लेकर, गार्डनर्स की थ्योरी को. But we will understand the critique later. But first we should try to understand that what Gardner's is trying to say about intelligence, how he has propounded this kind of theory, and how important it could be for humans to go further in the quest of knowledge, or in the quest of understanding some aspects related to human mind.
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस दिशा में ये चीज बड़ा ही इम्पोर्टेंट। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, देर आर 8 parts, 8 parts of intelligence told by Gardner. Gardner has been a famous psychologist in the Harvard University, and he has extensively worked upon the understanding of intelligence. Though some scholars say that not much empirical data has been produced, but even though there are higher chances that people are believing in this theory, they are practicing in, especially those people who are teachers, especially those people who are educators, people who are who are in the field of uh, you know uh, giving speeches or motivating people. They are using these kind of skills and intelligence formulas for their works. तो ये एक बहुत ही शानदार सी कुछ 8 बातें बताई इन्होंने, इंटेलिजेंस के प्रकार बताए। तो पहली बात तो हम ये, मैंने जैसे कि आपको ये क्लास शुरू करने से पहले बताया कि व्हाई वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस इंटेलिजेंस थिंग, हम लोग इसको समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। इसको समझने की हम कोशिश, कई इसके फायदे हैं हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी वुड बी एबल टू लर्न ourselves more, and if we know ourselves, we will be able to search our happiness, our own happiness. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें, आपको पता है कि ये जानना जरूरी है कि हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो विवेक है, या हमारे जो मस्तिष्क की क्रियाएं हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, वो किस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। अगर हम उन चीजों को समझ लेंगे पहले ही, तो आप निश्चित रूप से ये जान पाएंगे। जस्ट अ सेकंड में, एक चीज और मुझे ऑन करना था कंप्यूटर में, उसके बाद मैं ओके सो ओके सो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर हम ये जान पाएंगे कि हमारी जो मनोवृत्ति है वो कैसी, हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है और किन चीजों के प्रति हमारा झुकाव है, तो हम लोग इस बारे में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे कि हमारे जो आसपास चीजें हो रही हैं वो हम क्यों नहीं कर पा रहे, या उन चीजों को हम फॉलो करते भी हैं तो हमें वो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा जितना उस व्यक्ति को आनंद प्राप्त हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी नो आवरसेल्व्स। Until now, in many classes or many theories that you have read, till now you must have understood that each and everybody's happiness is different, and no matter how many ideas or theories or the concepts we understand, it is only us who can understand ourselves the best. And this class is unique in this way, that is, it gives us chance to search the inner personality of ourselves. क्योंकि जिस चीज को इंटेलिजेंस कह रहे हैं वो हो सकता है पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हो। कुछ जो विश्लेषण करता है, कुछ जो एनालिस्ट हैं, कुछ जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो 8 प्रकार इंटेलिजेंस के बता रहे हैं और गार्डनर, वो कहीं ना कहीं आंतरिक जो पर्सनैलिटीज है उसको ज्यादा परिभाषित करते हैं, ना कि मनुष्य के बुद्धिमत्ता को और उसके इंटेलेक्ट को। तो एक जो ये 8 प्रकार हैं, अगर हम इनको शुरू से पढ़ना शुरू करें तो यू कैन रीड ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट इज विजुअल स्पेशियल। तो विजुअल, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट में यू कैन सी, ये जो विजुअल वाला जो गुण है, विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है कि आपके अंदर एक खास तरह की इंटेलिजेंस होती है, जिससे कि आप, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे रीड एंड राइट फॉर एंजॉयमेंट। ठीक है, तो ये these people are good at putting puzzles together,
interpret pictures, graphs, and charts well, enjoy drawing, painting, and the visual arts, recognize patterns easy. तो आप ये देखिए कि ये जो गुण बताए इन्होंने, जो विजुअल इंटेलिजेंस में होते हैं, आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि इस तरह के जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके अंदर है? तो इफ आई टॉक टू यू सुजाता मैम, आप बताइए कि आप के अंदर इस तरह की कुछ चीजें हैं, या आगे हम लोग जो बात करेंगे दे कैन बी मोर रिलेटेड विद यू. मनीषा जी, प्रीति, हर्षिका, सॉरी, हरि हरि कृष्णी जी, can you tell anybody of you who is more related with this aspect of your personality, that is related to these characteristics, and you must be having this kind of potential. As you can read on my screen, you must be having the potential of becoming an architect or an artist or an engineer, because you have this special sense of understanding maps, or sense of understanding a few pictures, or some terrains, or these kind of things you would be able to understand more easily in comparison to other people. तो एक इस तरह की इंटेलिजेंस की बात की गई है, जो गार्डनर कहते हैं कि कुछ लोगों में इस तरह की इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, तो उसमें उनमें देख कर समझने की परख ज्यादा होती है. जैसे आप एक इंजीनियर में क्या होगा, ही कैन वेरी इजीली speculate that what could be the height or the width, or anything related with any area or something. तो ये एक इंजीनियर बहुत जल्दी से सर मुझे लगता है कि मुझ में ना मैं देख के मुझे हाइट का पता लग जाता है और विड्थ का, और मेजरमेंट जैसे इनफैक्ट मैं सब्जी भी कई बार लेती हूँ, तो अगर मुझे 1 किलो चाहिए तो मैं 1 किलो मतलब 50 to 90% ऑफ द टाइम वो उतनी होती है. yes, और yes. हाइट तो मैं मतलब देख के मुझे बहुत शौक भी है, जैसे रेनोवेशन का और घर को चेंज करने का, तो मतलब उसमें मुझे लगता है कि मैं काफी ठीक हूँ, काफी एक्यूरेट हूँ. जी जी, ग्रेट. तो आपने ये जो बात बताई है मेरे को, इट शोज दैट वी can be different in many senses. We all know about this, but we do not theorize these things, and this class gives you a chance that these things can also be theorized. And we if we accept and if we know ourselves early, we can choose our interest, and we can be more successful, and more success gives you more happiness in a way. People say कि ठीक है, हम लोगों ने ये बात करते हुए आए हैं कि सक्सेस का सीधे मतलब नहीं है, हैप्पीनेस से इससे नहीं है, बट आप ये देखेंगे कि छोटी छोटी चीजें जुड़कर ही कभी कभी बहुत बड़ी चीजें बनती है. So early you know about yourself, early you can make some decisions, good decisions in life, और वो आपको वो कर सकते हैं. तो आप मेरे ख्याल में आप टीचर ही हैं, तो आपका जो ये एक गुण है, आप टीचिंग में भी कहीं ना कहीं में भी आप यूज करती होंगी. अगर आप कुछ पढ़ाते होंगे तो यू कैन डिस्कस सम ऑफ द ज्योग्राफिकल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन डिस्कस मोर इजीली द मैप्स, not exactly that each and every characteristics that they have told would be there in you, लेकिन ज्यादातर कुछ चीजें आप में मिलती जुलती होंगी जरूर, अगर आप उनको परखेंगे तो. कि आप में हो सकता है पिक्चर्स के बारे में, या किसी पेंटिंग के बारे में, या किसी खास जगह के मॉन्यूमेंट्स के बारे में आप में बताने की या समझने की, या उसके प्रति एक आकर्षण कम से कम होने की एक सेंस और लोगों से ज्यादा होंगी. तो इस तरह की शायद सर यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगी कि शायद यही रीजन है कि मुझे मॉन्यूमेंट्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं. यस यस. सो इस तरह के जो लोग होते हैं वो आर्किटेक्ट बेहतर बन सकते हैं अगर उनको बचपन से उस तरह की ट्रेनिंग में रखा जाए. ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, कितने भी गुण हो लेकिन आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, सो ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी ruined with time passing on. तो आपको ये जरूरी है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड वी अंडरस्टैंड अबाउट द पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन, एंड वी should try to send that particular person in that side so they can be more successful.
ठीक है, तो ये चीज आप मेरे ख्याल में समझ गए होंगे, जिसको फर्स्ट पार्ट के रूप में हम जानते हैं, और इसको विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस के रूप में जाना जाता है। इस तरह के लोगों की जो स्ट्रेंथ्स होती हैं वो विजुअल और इस तरह के जो जजमेंट करने की बहुत अच्छी पावर उनकी होती है। एज यू कैन रीड ऑन योर स्क्रीन, मैप्स, चार्ट्स, वीडियोस एंड पिक्चर्स, और ये इस तरह के लोग इस इनसे मिलते जुलते प्रोफेशन में अगर जाते हैं या गए हैं तो दे कैन बी मोर सक्सेसफुल। एक होता है, देखिए 90s में इंडिया में क्या हुआ कि एवरी हाउस होल्ड वाज थिंकिंग दैट आवर सन शुड बी एन इंजीनियर, और मोस्ट लाइकली और डॉटर शुड बी ए डॉक्टर, समथिंग लाइक। तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी कि सब लोगों ने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए भेज दिया। तो उन्होंने परीक्षाएं तो रट के पास कर ली, बट एक जेन्युइननेस जो होती है इंजीनियर का, जो दिमाग होता है जिसमें बचपन से जो अलग तरह की एक वो होना चाहिए उसके अंदर, वो उन लोगों में बहुत सारों में नहीं थी। तो फिर आप देखते हैं कि भारत में इतने अबंडेंस में इंजीनियर्स हो गए कि उनकी जो महत्वता है वो कम हो गई, क्योंकि आप बहुत ज्यादा हो जाओगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल दैट पीपल फॉलो blindly, and they do not see what kind of characteristics or virtues our offsprings have, our children have. तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है। सेकंड इज द लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, और मैं इससे बहुत कनेक्ट करता हूँ अपने आप, that this second or all of you somehow must connect yourself because you are a teacher as well, और आप लोग टीचर बने हैं तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी भाषा की और आपकी बोलने की जो शक्ति है और वो समझने की जो शक्ति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। So you can read on your screen that people who are strong in linguistic verbal intelligence are able to use words well, both when writing and speaking. These individuals are typically very good at writing stories, memorizing information and reading. So ये तो बहुत ही important एक गुण है टीचर्स के लिए, और स्पीकर्स के लिए, और मोटिवेटर्स के लिए, लीडर्स के लिए। If they are good at memorizing things, if they are good at giving instances, or if they are good at giving some of the examples, they can be very good teachers. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कौन लोग इस वाले गुण से रिलेट करता है? इस वाले ये सेकंड इंटेलिजेंस बताई है कि आप में से कौन इससे अपने आप को रिलेट कर पाता है? कोई बताना चाहता है? जी, कोई कर पा रहा है इससे रिलेट अपने आप को? मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं इससे थोड़ा रिलेट करता हूँ। Our first language is Hindi, and all my education has been in Hindi medium, most of my education. Though I learned Urdu and I learned English in the later part of my education after 12th or so. मतलब पहले से भी अंग्रेजी वगैरह पढ़ते तो रहे, बट नोट मीडियम ऐसा नहीं था। मीडियम बस टोटली हिंदी। तो आपके अंदर अगर सीखने की इच्छा शक्ति है और आपको पसंद है भाषाएं सीखना, शब्द सीखना, तो यू कैन रिलेट योरसेल्फ विद दिस, और आप बहुत जल्दी उन शब्दों को समझकर और उन शब्दों को याद रखकर आप भाषाएं को बेहतर कर सकते हैं। और भाषा सीखने का जो आपका जो सोर्स होगा, दैट विल नॉट ओनली बी द बुक्स, but there could be some films, there could be some novels, or there could be some kind of series or something like that. You can also be a good debater or something. तो बहुत जगह से आप, बहुत तरीके से आप भाषाओं को सीखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस का पार्ट। और जैसे मैं आपको बताऊं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इन लोगों की, वो क्या होती हैं ज्यादातर। You can read on the screen, people with linguistic verbal intelligence, they remember written and spoken information. So for a teacher, this is a very good talent. If you are able to remember or memorize things for a longer time, you could use those examples in many of your lectures or somewhere. So उससे होगा क्या कि आप एक बेहतर नैरेटर बन सकते हैं, एक बेहतर लेक्चरर बन सकते हैं, और आपकी बात ज्यादा समझ में आएगी। अगर आपके पास एग्जांपल्स अच्छे हैं, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, तो यू वुड हैव ए ग्रेट यूज ऑफ वर्ड्स आल्सो, जिससे कि चीजें बेहतर हो सकती हैं। सेकंड, एंजॉय रीडिंग एंड राइटिंग। यस, दिस काइंड ऑफ पीपल so often they read and write,
like I myself, if I, as I am saying that I relate to this, I also write poetries and stories and these kind of things. So in some of my recorded classes, you must have listened some of my poetry. So how these poetry come in your mind? These come in your mind when you have these kind of intelligence naturally. Somehow some of these things can be learned, can be trained, but not everything. जैसे कि मुझे मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ मैथमेटिक्स सिंस माय चाइल्डहुड। तो मैं, हालांकि मुझे नंबरों से इतना मतलब डर नहीं लगता और नॉर्मल चीजें मैं कर लेता हूँ, बट थोड़ा सा मैथमेटिक्स ऊपर जाते ही मैं उसमें मेरी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। बट as far as we talk about some literary things, or we talk about poetry or some other aspects of creativity like theater and something like that, I become very active. So how so it does not mean that I am not intelligent if I don't know mathematics. The same way, the person who is doing mathematics or logic in a very good way, and he might not be interested in poetry at all, or interest is a wrong word here, he would not understand poetry at all. So this could be like this. तो ऐसे हम लोग, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बुद्ध हो गए या हम लोगों को समझ नहीं है उस चीज की। हमारी मस्तिष्क की बनावट ऐसी है, हमारी जो समझने की कैपेबिलिटी है वो इस तरह से डेवलप हुई है, चाहे उसके पीछे जेनेटिक रीजन हो, चाहे उसके पीछे एनवायरमेंटल रीजन हो, चाहे उसके पीछे और भी अलग अलग तरह के रीजन हो सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो आवरसेल्फ फर्स्ट। द सूनर वी नो आवरसेल्फ, the sooner we will be able to take good decisions in our favor. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भी अपने बारे में जानें। All of you are adults and have been teaching maybe for many years, and you must be knowing about yourself, but still if you give some time yourselves, and if you try to search it out more profoundly, you will find that there are some qualities of yours which you have never exploited. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बचपन में हो सकता है थोड़ा बहुत गाना गाना शुरू किया था, लेकिन पढ़ाई के चक्कर में और काम की जिम्मेदारियों में और फिर परिवार बन गया उस जिम्मेदारियों में, और तो वो अपना कभी शौक पूरा ही नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने थिएटर करने की सोची थी, कुछ लोगों ने सोचा था कि हम पेंटिंग करेंगे, कुछ लोगों ने कुछ और इस तरह का सोचा था। सो दे कुड बी योर पर्सनल ट्रेट्स, दीज कुड बी योर पर्सनल वर्च्यूज विच कुड नॉट ग्रो। एक जैसे कली होती है ना, वो कभी खिल ही नहीं पाई, वो बीच में वो बाधा आ गई, और वो किसी जिम्मेदारियों की वजह से, किसी परेशानियों की वजह से या किसी और कारणों से वो काम कभी हो ही नहीं पाया। बट इट्स द हाई टाइम फॉर ईच एंड एवरीबडी ऑफ अस, इफ यू वांट टू बी हैप्पियर, if we want to be in search of happiness, we should try to follow some of our inner habits, which are our personal traits. उनको पहचानना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तब जब आप उनको पहचान जाए तब उनको थोड़ा बहुत फॉलो करें। नॉट दैट ईच एंड एवरीबडी ऑफ अस कैन फॉलो देम प्रोफेशनली, बट एटलीस्ट अपने आप को खुश रखने के लिए हमें उन चीजों को करने की बहुत महती आवश्यकता है। तो ये क्लास का मतलब आज की ये नहीं है केवल कि हम लोग इंटेलिजेंस के ट्रेट्स पढ़ रहे हैं और ये 8 तरह के इंटेलिजेंस पढ़ाए हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो आवरसेल्व्स एज वेल। इफ वी नो आवरसेल्व्स, it will be better for us, as I given you some examples. So third point इसमें लिखा है debate or give persuasive speeches. So there are some people who are good at word formation, who are good at using words and making sentences and remembering and memorizing things. They can be good orator. They can debate as well, because they will have those things very quickly in their minds. While you are debating or while you are orating, you need to be very focused, and your mind needs to stretch out things very quickly, to extract them very quickly. And in this process of extracting, you have to be very sharp, you have to be very focused, and the best example that could be used at that place.
सो इस तरीके से इस तरह के लोगों में एक विशेष गुण पाया जाता है, इस तरह की इंटेलिजेंस जिनमें होती है कि वो इस इंटेलिजेंस का नाम क्या बताया, इसका नाम है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। तो इस लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस का आप यूज डिबेट करने में भी कर सकते हैं, और इस तरह की चीजों का यूज आप किसी से कोई बहस में अगर जीतना है आपको, या आपको कहीं भाषण देना है, या किसी को बात समझाना है, उसमें भी आप आर एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स वेल, are not there. These people, these kind of people are comparatively better than others in explaining things. So they will have some small things which is very complex and vague, but they will be able to make it large. They will be able to make it more comprehending. तो उसको समझाने के लिए, उसको सिखाने के लिए उनके पास एग्जाम्पल्स ज्यादा होते हैं अक्सर, और एक्सप्लेन बेहतर तरीके से करते हैं। तो और use humor when telling stories. So these kind of people, when they are telling stories or anything, or they are telling any instance, they will have humor. And humor is one of the best thing of the human interactions. You must know about this, because we as a creature who are blessed with this voice and language and everything, humor is the best thing that one can put things at ease. Sometimes people just a second please. So sometimes people are having very harsh debates, they are at conflicts, people are not listening to each other, but people who have humor, they can put the severest of the things in a very comfortable manner. आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमर एक इतनी बड़ी चीज है, हास्य विनोद करना और व्यंग्यात्मक तरीके से चीजों को यूज करना, और एक विट होना, यानी कि क्योंकि जैसे आप देखते हैं बड़े बड़े नेताओं के बारे में आपने सुना होगा, महात्मा गांधी के बारे में या किसी इन लोगों के बारे में, अपनी बातों को कहने का एक तरीका होता था, और वो अगर वो कहने का तरीका अगर उनके पास है और अपनी बात रखने का एक तरीका है, तो बड़े से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आसानी से सुलझाया जा सकता है। नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बड़ा होता जाएगा और उसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ह्यूमरस होना एक 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 सभ्यता की पहचान है, और जो सभ्यता ह्यूमरस नहीं, वो समझिए कि वो सभ्यता इंटेलिजेंट नहीं है। अगर वहां लोग जरूरत से ज्यादा सीरियस हो गए हैं चीजों को लेकर, तो वो भी एक प्रॉब्लम का विषय हो सकता है हमेशा। तो ये एक these are some of the characteristics which one should understand while understanding themselves. Potential career choices, these people can be good writer, these people could be good lawyer, journalist, teacher. As you know that these all professions need good vocabulary, these profession need humor, these profession need wit, these profession need a quick sharp mind. क्योंकि अगर एक लॉयर एक अच्छा लॉयर है कोई, और उस वो मतलब लॉयर अच्छा है वो, लेकिन वो उसके अंदर विट नहीं है, या उसके अंदर ह्यूमर नहीं है, या उसके अंदर बोलने की कला नहीं है, लेकिन वो लॉयर बहुत अच्छा है, तो भी वो फेल हो जाएगा, है ना। इफ देयर इज ए गुड टीचर हु हैज ए गुड नॉलेज, who has good knowledge of everything, and he knows he has read several books upon a topic, or but he does not know how to speak, things will be failed. तो इसी तरीके से आपको एक प्रेजेंटेशन की जो कला है, इस तरह के लोगों में ज्यादा होती है, जिनके अंदर ये सेकंड नंबर का गुण है, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस कहते हैं इसको। और अगर किसी के अंदर ये है, तो उसको इन 3-4 प्रोफेशन की तरफ जाना चाहिए, वो ज्यादा उसमें सफल हो सकता है। Number 3 is the logical mathematical intelligence that I was saying that I'm very afraid of. I get frightened when I got frightened when I used to face mathematical problems at my earlier age. So ये होता है कुछ लोगों में, कुछ आप में से लोग होंगे जो मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छा लगता होगा, जिनको लॉजिक करना बड़ा अच्छा लगता होगा,
और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मेरी तरह के होंगे जिनको आर्ट की चीजें ज्यादा पसंद होंगी। तो इस तरह की स्ट्रेंथ होती है, और जिन लोगों में इस तरह की स्ट्रेंथ होती है, दे सी थिंग्स इन नंबर्स। मतलब वो मैथमेटिक्स तो अच्छा ही, उनका लॉजिक तो अच्छा ही है, दे विल काउंट प्रॉब्लम्स, दे विल सोल्व देम इन मैथमेटिकल वे एज वेल। एंड उनकी एनालाइज क्या होती है, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, एनालाइजिंग प्रॉब्लम्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो गणनाएं करने में, उनका हिसाब किताब रखने में, और चीजों को बैलेंस करने में इनको थोड़ी महारत होती है, क्योंकि ये नंबर्स के माहिर होते हैं, और उनके पर्सनैलिटी के ट्रेट्स में भी वो गुण कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। जैसे अगर कोई आर्ट्स का टीचर है या स्टूडेंट है, वो उसकी भाषा बेहतर हो सकती है, उसकी राजनीतिक समझ बेहतर हो सकती है, और हो सकता है कि वो सामाजिक मुद्दों की बातें भी करता हो ये वो। लेकिन जो मैथमेटिक्स वाले जो लोग होंगे ज्यादातर, उनका मतलब ज्यादातर, इसमें अपवाद, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल स्ट्रेट। तो उसमें क्या होगा कि आप देखेंगे कि इनका तौर तरीका उन लोगों से थोड़ा सा अलग होगा। जैसे हम लोग अक्सर ये बात करते हैं मेरे दोस्त और मैं, कि जो इंजीनियर्स होते हैं उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो भी आर्ट्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनसे अलग होता है। ये वो बड़ी चीजों की टेंशन, यानी कि बिना वजह की जो लगती है, पॉलिटिकल कोई अपहीवल हो रहा है या प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें उनका ज्यादा रुचि नहीं होगी। उनका रुचि होगा इन्वेंशंस में और चीजों को सॉल्व करने में। और जो आर्ट्स के लोग होंगे वो प्रॉब्लम को समझते बेहतर है, लेकिन सॉल्यूशन पावर उनमें बेहतर उतनी ज्यादा कई बार नहीं देखी गई। सो दीज आर सम ऑफ द ट्रेट्स दैट वी फाइंड and in a different kind of categories of people। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हैव एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, क्योंकि इतना प्रॉब्लम सोल्व करने की आदत पड़ जाती है वो बड़ी बड़ी प्रमेय को और बड़ी बड़ी उनको मैथमेटिकल और कंप्यूटर प्रॉब्लम्स को, कि तो वो प्रॉब्लम्स को भी उसी खांचे में देखते हैं और पॉइंट वाइज उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो वो उनमें एक अच्छा गुण पैदा हो जाता है। एंजॉय थिंकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज वैसे जो भाववाचक जो विचार है, मतलब जो जिनका कोई बहुत ठोस बेस नहीं है, उस तरह के आइडियाज को भी थिंक करने की कोशिश करते हैं। लाइक कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। तो इस तरह के लोगों में अक्सर ये अभिरुचि देखी गई है कि वो कुछ चीजें बनाने में बड़े बेहतर होते हैं। जैसे आपके घर के जो टूल्स होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उनको तो अच्छा ठीक कर ही देंगे आसानी से। नए नए उनके जो उनसे क्या बनाया जा सकता है, वो उनके अंदर एक क्रिएटिविटी अलग तरह की होगी, लेकिन वो क्रिएटिविटी साइंटिफिक अप्रोच वाली क्रिएटिविटी होगी, जो कि मैकेनिकल फील्ड में बहुत काम आती है और उस चीज में काम आती है। और जो क्रिएटिविटी आर्ट्स की क्रिएटिविटी होगी वो होगी शब्दों के साथ, भावनाओं के साथ, और उनकी जो प्रयोगशाला होगी, उनकी जो लेबोरेटरी होगी, वो समाज होगा। जो आर्ट्स के लोगों की लेबोरेटरी वो समाज है, और जो साइंस के लोगों की लेबोरेटरी है वो एक रियल लेबोरेटरी जिसे हम कहते हैं, जिसमें उपकरण होते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो समाज की लेबोरेटरी है उसमें परिणाम हमेशा एक जैसे नहीं आएंगे, लेकिन साइंस की लेबोरेटरी में अगर आपने एक निश्चित परिमाप में चीजों को डाला है और यूज किया है तो आपको परिणाम हमेशा एक जैसे मिलेंगे, है ना। तो मनुष्य की जो प्रयोगशाला है वो बहुत ही डिफिकल्ट प्रयोगशाला है, आपको ये आप सभी जानते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी किया और हम सब जानते हैं कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज वेरी डिफरेंट। तो हमारा परिणाम भी सबका अलग अलग चीजों में अलग ही आएगा। तो ये बातें हम लोगों को साथ साथ ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को या किसी भी ट्रेट्स को समझते हुए। और कैन सोल्व कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस, ये तो क्लियर है। पोटेंशियल करियर चॉइसेस, आपको पता ही है कि जो जिसको मैथमेटिकल जिसकी अप्रोच अच्छी होगी उसको साइंटिस्ट बनना चाहिए, या उसको मैथमेटिशियन बनना चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर वो अच्छा हो सकता है, इंजीनियर, अकाउंटेंट। दीज काइंड ऑफ पीपल आर वेरी डिफरेंट इन अप्रोच, बिकॉज आई इफ आई compare myself with these kind of minds, I find myself that I can not be able to do these works that efficiently,
और दैट diligently as they are doing. और मैं जो काम करता हूँ वो ये इस तरह के जो मेरे दोस्त हैं या लोग हैं वो इस तरह के काम, मेरे जो काम मैं ज्यादा पसंद करता हूँ वो लोग नहीं करते. So these are the differences of the personality traits which we should understand very clearly, very evidently, and recognizing them, we should lead ourselves to that side which we like the most. There is never too late, है ना. अभी भी आप में से, हम में से जो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मन की इच्छाएं की बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं, they should go to that side and should try to do those things. ठीक है. तो पोटेंशियल करियर चॉइसेस इनके ये होते हैं. फिर नंबर 4 पर आता है, इस तरह के इंटेलिजेंस वाले भी काफी लोग होते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस. तो ये जो लोग होते हैं, ये इनकी जो जिसे कहते हैं ना कि इनको एक्सरसाइज करना या अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करना, या मतलब एथलेटिक जिसे आप कहते हैं, एथलेटिक होते हैं, और इनकी मतलब अपनी शरीर पर बहुत कंट्रोल होता है. जो योगा अभ्यास करने में बड़ी रुचि लेते हैं, आप लोगों ने इस तरह के लोग देखे होंगे, एक्सरसाइज करने में, योग करने में, अपनी बॉडी को पर बड़ा ध्यान देते हैं. इस तरह के इंटेलिजेंस को भी एक पहचानने की कोशिश की है गार्डनर ने, कि इस तरह के लोगों की भी एक अलग तरह की अभिरुचि होती है. जैसे मैं बचपन से देखता आया हूँ कि कुछ बच्चे बचपन से ही एक्सरसाइज, और कठिन एक्सरसाइज मतलब मुश्किल, आसानी से कर लेते हैं, और कुछ जो है बहुत सिखाने पे और भी उतने आसानी से नहीं कर पाते. तो कुछ नेचुरल उनके अंदर ऐसा है, चाहे वो जेनेटिक्स की वजह से हो, चाहे वो कुछ एनवायरमेंटल रीजन रहे हो, या उसके पीछे उनको बहुत बिल्कुल एकदम बचपन में जब बिल्कुल उनकी शैशव अवस्था थी तब कुछ ऐसे चेंज उनके साथ किए गए, या उन्होंने अपनाई बातें कुछ, या सीखी या देखी, ऑब्जर्व की, तो वो कुछ में बहुत बेहतर होती है बचपन से, और कुछ में जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनमें उनके साथ ज्यादा कोऑर्डिनेशन करना उनको अच्छा नहीं लगता. तो आपने देखा होगा कुछ लोग, कुछ बच्चे स्पोर्ट्समैन अच्छे होते हैं बचपन से बिना सिखाए, और कुछ बहुत ज्यादा ट्रेनिंग के बाद भी उतने अच्छे नहीं होते. तो इसको भी पहचानने की गार्डनर ने कोशिश की है कि ये भी एक तरह की बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है हमारी. जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारी ब्रेन मेमोरी तो है ही एक, हमारी एक मसल मेमोरी भी होती है ना, और उस मसल मेमोरी को अभ्यास के द्वारा डेवलप किया जाता है. जैसे हमारी मसल मेमोरी कहाँ पर काम आती है, आपको पता है, ड्राइविंग करने में हमारी मसल मेमोरी बहुत काम आती है, क्योंकि ड्राइविंग एक ऐसा प्रोफेशन, मतलब ऐसा काम है, अगर आपने विद इन सेकंड के भी 10वें हिस्से में अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो आपसे गलतियां हो सकती है, और कोई एक्सीडेंट में घायल हो सकता है, या कुछ बड़ा भी हो सकता है. तो उसमें क्या होता है कि जितनी इंफॉर्मेशन आपके आंखों ने कलेक्ट की आगे किसी को देखकर, ब्रेक मारने के लिए जितना आपको समय चाहिए, उससे पहले दिमाग के पास वो चला जाता है, और दिमाग वापस आदेश भी कर देता है कि पैर को, कि आप जो है उसको ब्रेक को दबा दीजिए. लेकिन ये इतनी तेजी से होता है, मतलब ये इतने नैनो सेकंड में होता है ये काम, कि आप उसको, आपको ये लगता है कि मसल मेमोरी ने किया, यानी कि इसमें दिमाग का कोई रोल ही नहीं था. क्योंकि ड्राइविंग करते वक्त अक्सर हम कई सारे काम कर रहे होते हैं, गाना भी सुन रहे होते हैं, पास बैठे हुए किसी को पैसेंजर से बात भी कर रहे होते हैं, और कई बार हम फोन भी कर रहे होते हैं, या इस तरह का कुछ जो कि नहीं करना चाहिए. लेकिन उसके बावजूद भी आपके दिमाग का एक बड़ा हिस्सा, जिसको हम लोग मसल मेमोरी की कह रहे हैं, वो कंसंट्रेट रहता है, और वो उसी अकॉर्डिंग काम करता है, क्लच भी दबाता है, गियर भी बदलता है, और आगे दूसरे वाहनों को भी देखता है. तो वो कैसे हो रहा है, और दूसरे काम हम इतने सारे एक साथ नहीं कर पाते. आप पढ़ाते हुए या कुछ और काम करते हुए कई बार 2 या 3 काम नहीं कर पाते. कुछ इजी काम है तो कर लेंगे आप, लेकिन गाड़ी चलाते हुए आप 2 या 3 काम कर पा रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गाड़ी चलाते चलाते उस ड्राइवर को इतना अभ्यास हो गया है, उसकी मसल्स समझ गई हैं कि हमें किस समय क्या करना है. वो पैरों की मसल्स हैं, और उनका कोऑर्डिनेशन दिमाग से इतना बेहतर है, इतना तेज है, कि वो चीजें एकदम हो रही हैं. तो वो एग्जांपल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जिन लोगों में ज्यादा होती है, या जो ज्यादा इसमें होते हैं, वो या तो गुड अच्छे एथलीट होंगे, स्पोर्ट्समैन होंगे, या उनमें कुछ और भी तरह के बहुत सारे गुण होंगे. जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में आप पढ़ सकते हो
People with bodily kinesthetic intelligence are skilled at dancing in sports. As I told you earlier, sports, dancing वगैरह में, क्योंकि इनके बॉडी पे बहुत कंट्रोल है. आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों को बचपन से डांस सिखाया जाता है और वो कई बार बहुत अच्छा करते हैं, और कुछ बच्चों को उतना ही सिखाया जाता है लेकिन वो उतना अच्छा नहीं करते. तो उनमें कुछ जेनेटिक इंक्लिनेशन या फिर कुछ नेचुरल ऐसा जरूर है जो कि दूसरे बच्चों में नहीं है. इसको पहचानने की कोशिश की है. उन्हीं बच्चों का कोऑर्डिनेशन स्पोर्ट्स में बेहतर होते हैं, वो जल्दी सीखते हैं और मुश्किल से मुश्किल स्पोर्ट्स को फॉलो कर लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसा नहीं कर सकते. तो उसको भी एक तरह के इंटेलिजेंस के माध्यम से समझाने की कोशिश की गार्डनर ने. दे एंजॉय क्रिएटिंग थिंग्स विद हिज और हर हैंड्स. इस तरह के लोगों में ये भी होता है कि वो अपने हाथ से, शरीर से अलग अलग तरह की भाव भंगिमाएं और शारीरिक पोस्चर बनाते हैं अच्छे, या इस तरह काम करते हैं. हैव एक्सीलेंट फिजिकल कोऑर्डिनेशन. देखिए, आपने ऐसे भी बचपन में आप खेले होंगे या देखते होंगे अपने बच्चों को या दूसरों को कि कुछ बच्चों में कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा है, वो एकदम से बॉल फेंकते हैं, एकदम से भागकर पहुंचते हैं, ये करते हैं. कुछ बच्चे बड़े सुस्त से होते हैं, वो उनमें देर लगती है, और कभी कभी समय के साथ बदलाव भी आते हैं उनमें, थोड़े समय बाद वो बेहतर हो जाते हैं, और कुछ कभी नहीं हो पाते. तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए उन्होंने यही बताया कि निश्चित रूप से कुछ लोगों में कुछ जेनेटिक्स या कुछ भी ऐसे तत्व जरूर हैं जो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं, और कुछ लोगों में ये जो तत्व हैं वो उनका अभाव होता है निश्चित रूप से, और दूसरी चीजें उनमें ज्यादा हो सकती है ना. तो अक्सर ये देखा गया है कि जो बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छा होगा वो खेलने में अच्छा नहीं होता, और जो खेलने में बहुत ज्यादा एक्टिव है और ये हो, उसका पढ़ने में दिमाग नहीं चलता. तो इसकी वजह, मतलब ऐसा एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, आई एम टॉकिंग अबाउट इन ए जनरल वे, कि ऐसा अक्सर देखा गया है. तो उसकी वजह यही है कि उनमें किसी खास किस्म की इंटेलिजेंस ज्यादा है, और कुछ बच्चों में कुछ खास किस्म की इंटेलिजेंस ज्यादा, जो गार्डनर कहते हैं. तो ये आपको समझने का एक विषय. फिर है रिमेम्बर बाय डूइंग रेदर देन हियरिंग और सीइंग. इस तरह के लोगों में एक प्रवृत्ति और देखी उन्होंने कि ये लोग करके काम को याद रखते हैं, बिना करे उनको चीजें याद नहीं रहती. ऐसा नहीं है कि वो केवल सुनकर या देखकर सीख लेते हैं, वो कर उसको बहुत जल्दी करना चाहते हैं. तो कुछ बच्चे ऐसे अक्सर आपने देखे होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो तभी उनको वो चीज को पक्का मानते हैं जब वो खुद कर लेते हैं उसको. कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल सुनकर या देखकर भी इस चीज को सीख लेते हैं. तो ये है. तो इन्होंने बताया कि डांसर बन सकता है, बिल्डर, स्कल्प्टर, एक्टर, मतलब मूर्तिकार, चित्रकार और एक्टर. देखिए, एक्टर इन्होंने इसलिए लिखा कि हमें यहाँ से देखने पर ऐसा लगता है, लेकिन एक्टर का लाइफ इतना डिफिकल्ट होता है और उसको इतने तरह के रोल करने पड़ते हैं कि उसको अपने शरीर को बार बार ढालना पड़ता है ना. और आपको पता है कि आजकल की जो एक्टिंग है पिछले जो 30-40 सालों से हो रही है, जिसको क्या बोला जाता है, एक शब्द है उसके लिए मुझे याद नहीं आ रहा. तो उस तरह का जो एक्टर बनना है आपको, मेथड एक्टर कहते हैं उसको, मेथड एक्टर. मेथड एक्टिंग में क्या होता है कि आपको अगर मोटे हैं तो मोटा अगर कोई रोल करना तो आपको मोटा होना पड़ेगा, जैसे दबंग में आमिर खान होते हैं. और अगर आप पतले हैं तो आपको पतला होना पड़ेगा, आप किसी उपकरण का सहारा नहीं लेंगे. तो इस तरह की में कई बार कई सारे महीने, साल लगते हैं, प्लस बहुत मेहनत लगती है और बहुत डेडिकेशन लगता है, और वो व्यक्ति ही केवल इन कामों को कर सकता है जिसका अपने शरीर पर नियंत्रण और लोगों से ज्यादा है ना. तो एक्टर मतलब अच्छा इस तरह के रोल्स कम से कम वो व्यक्ति कर सकता है. तो एक्टिंग में ये इस तरह के लोग ज्यादा सफल हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में और इस तरह की चीजों में, और जैसे बॉडी बिल्डिंग में भी. और एक ये शब्द लिखा है इन्होंने, बिल्डर. तो ये बिल्डर इन्होंने कौन सा वाला बिल्डर लिखा है ये क्लियर नहीं किया, बॉडी बिल्डर लिखा है या बिल्डिंग का बिल्डर लिखा है ये इन्होंने बताया नहीं. तो जो भी एक है, तो इस तरह की इंटेलिजेंस बहुत एक इम्पोर्टेंट है. वो भी एक इन्होंने बताई है म्यूजिकल इंटेलिजेंस. ये वाली जो इंटेलिजेंस है, अब ये कुछ हद तक कुछ पार्ट इसका मेरे अंदर है. मुझे आप बताइएगा, आप लोग भी कोई बताइए, अगर म्यूजिक आप लोग गाना वाना गाते हैं कोई, या आपको गाने सुनना बहुत पसंद है, भले ही आप गा नहीं पाते, लेकिन आपके मन का कोई हिस्सा उनको समझता बहुत गहराई से है.
तो बताइए कोई है कुछ इस तरह का आप में से जो म्यूजिक के प्रति जिसका आकर्षण बहुत ज्यादा हो? सुजाता जी, मैम? सुनना हाँ जी, पसंद है, हाँ जी, सुनना। सुनना सर पसंद है। सुनना पसंद है। जी 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 जी, चंद्रकांता जी बोल रही हैं मैम, है ना? तो तो मैम बड़ी अच्छी बात है ये तो, और सुनना पसंद है आपको, तो नहीं तो अगर आप गाते भी तो हम लोग अभी आपसे सुनते भी। तो एक तो होता है कि सुनना बहुत पसंद है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका भी एक वो होता है मैम, कि आपको सुनना पसंद है, बहुत लोगों को सुनना भी पसंद नहीं है। इसका मतलब आपके अंदर एक कुछ खास किस्म के रिदम्स हैं, एक खास किस्म का म्यूजिक है आपके अंदर, भले ही वो अ, उसको आपने ग्रो नहीं किया, इनकलकेट नहीं हो पाया वो उस तरीके से, लेकिन वो आपके अंदर वो चीजें हैं। और अक्सर आप देखेंगी कि कई पीढ़ी बाद भी, कई जनरेशन बाद भी कुछ बच्चों में आपके होने वाले या हो चुके, या फिर अगली पीढ़ी में या कहीं पर आप देखेंगे उसका प्रभाव जरूर आएगा। भले ही आपने उन चीजों को फॉलो नहीं किया हो, लेकिन वो गुण अगली जनरेशन्स में भी किसी ना किसी माध्यम से, डीएनए के माध्यम से चले जाते हैं। और आप में भी अगर गुण है, ये कहीं ना कहीं पिछली जनरेशन में कहीं ना कहीं से ये आया है। तो ये इस तरह का होता है। इस गुण से थोड़ा सा मैं भी मुतासिर हूँ, थोड़ा असर है इसमें। मतलब मैं गाता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं गाने लिखता हूँ, और मैंने कई गाने लिखे हैं, अभी कुछ सालों में हो सकता है वो आए। तो ये और वो गाने भी तभी लिखे जा सकते हैं जब आप में एक म्यूजिक की कुछ खास नेचुरल समझ हो। थोड़ा तो आपका प्रोफेशन आपको हेल्प करेगा, यानी कि आप पढ़ते हैं लिटरेचर, आप फिल्में देखते हैं, आप लोगों की सुनते हैं, वो हेल्प करेगा आपकी। लेकिन कुछ नेचुरल आपके अंदर होना जरूरी है, जैसे कुछ लय की समझ या ताल की समझ और संगीत की कुछ समझ। तो वो कुछ खास लोगों में ज्यादा होती है, अक्सर मैंने देखा है। तो मैं गा तो नहीं पाता, मैंने कोशिश भी ज्यादा कभी नहीं की, लेकिन मैं लिख पाता हूँ। तो कुछ ना कुछ लय की समझ तो है, कुछ ना कुछ ताल या कुछ इस तरह का तो है। तो वो हो सकता है लेखन वाले गुण से आ रहा हो कहीं पर। लेकिन ये चीजें बहुत ही आपस में जुड़ी हुई हैं, और इनको यहाँ पर इन्होंने अलग अलग दिखाने की कोशिश की है कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी एक ये होती है। और इसको अलग क्यों रखा है इन्होंने, इसके बारे में आप सोचिए कि भाई ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज क्यों है कि इसको अलग रखा। क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है, और आपने भी महसूस किया होगा, कि कुछ खास लोग ही होते हैं जो जिनमें एक खास किस्म का म्यूजिक के प्रति समझ होती है, या किसी ना किसी रूप में वो म्यूजिक को फॉलो करते हैं, करवाते हैं। इसलिए इन्होंने इसको इंटेलिजेंस बनाया। अगर ये एक कॉमन गुण होता, अगर ये बिल्कुल सामान्य सी बात होती, तो ये एक इंटेलिजेंस ना होता। एक सामान्य गुण धर्म होता है कि सभी लोग इस काम को कर सकते हैं, जैसे सभी लोग खाना खा सकते हैं, है ना? सभी लोग टहल सकते हैं, है ना? सभी लोग थोड़ा बहुत दौड़ सकते हैं। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस को अलग से रखा, क्योंकि ये बहुत ही रेयर तरह का गुण है। भले ही हमें गाने वाले लोग बहुत सारे दिख जाते हैं, लेकिन आप अगर नंबर्स में देखोगे, परसेंटेज में देखोगे, तो एक एक दो तीन 4% लोगों से ज्यादा नहीं होंगे। वो 100 में से 4 या 5 लोग ऐसे होंगे जिनको म्यूजिक की अच्छी समझ नेचुरली होगी। सीख कर कुछ लोगों में बढ़ जाएगी, कुछ लोगों में थोड़ी और बेहतर हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि उन्हें थोड़ा सा, अगर आप गिटार उनके हाथ में दे दो और उनको सिखा दो आप 2 महीने, तो बहुत जल्दी सीखेंगे। और कुछ बच्चे जिनको आप पूरे साल सिखाइए गिटार या कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट, वो उतना अच्छा या उसका आधा भी नहीं सीख पाएंगे। तो ये एक म्यूजिकल इंटेलिजेंस से उन्होंने मापने की कोशिश की है, और ये एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और या परखे गए हैं कई हजार लोगों पर, तब जाकर उन्होंने ये चीजें बताई हैं। और मैं फिर से कहूंगा कि नॉट ईच एंड एवरी स्कॉलर वुड एग्री टू ऑल दीज थिंग्स, लेकिन ये एक स्पेकुलेशंस है, और इनमें भी कुछ ना कुछ सच्चाइयां जरूर है। हो सकता है कि इन्होंने इसको इंटेलिजेंस कहा, कुछ लोग इसको पर्सनैलिटी ट्रेट्स कहें, कुछ लोग इसको जेनेटिक्स से जोड़ें, कुछ लोग इसको किसी और प्रवृत्ति से जोड़ेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स तो हैं ह्यूमन के और ह्यूमन ब्रेन के, जो हमें कम से कम ये समझने का मौका दे रहे हैं, भले ही इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं उसके लिए। तो ये हमें समझने चाहिए। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल इंटेलिजेंस आर गुड एट थिंकिंग इन पैटर्न्स। तो ये लोग जो हैं पैटर्न्स में सोचते हैं चीजों को, रिदम्स और साउंड्स भी में भी उनको चीजें याद रखती हैं। अक्सर आपने देखा होगा इस तरह के लोग ना 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 जलग अलग अलग तरह की धुनें वगैरह सोचते रहते हैं, गाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो वो सबके बस का काम नहीं होता, क्योंकि ये एक अलग तरह की इंटेलिजेंस आता है। जो ये एक रिसर्च ये कहती है कि जो लोग म्यूजिक का निर्माण करते हैं,
जिन्हें हम लोग म्यूजिक डायरेक्टर कहते हैं ना, वो लोग सामान्य बुद्धि से कहीं ज्यादा उनका मस्तिष्क काम करता है, क्योंकि वो इतना इमेजिनेशन पावर इतनी ज्यादा है उनकी। आप सोचिए कि गाना लिखा गया है, उस पर क्या सूट करेगा, कैसे करेगा, किसको क्या गाना है, कौन सा बीच में इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए, कितना आना चाहिए, कितने धुन। तो वो बहुत ज्यादा बड़ी इमेजिनेशन का काम होता है, काट छाट करना होता है लिखे हुए म्यूजिक में भी बहुत सारा। तो वो सबको कोऑर्डिनेट भी करना होता है। तो एक बहुत इंटेलिजेंट, बहुत वेरी वेरी इंटेलिजेंट आदमी होता है, अक्सर ये देखा गया है, जो म्यूजिशियन होता है, जो म्यूजिक का डायरेक्शन करता है खासकर। ठीक है, तो ये एक रिसर्च के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। और दूसरे इन्होंने बताया कि दे हैव ए स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन फॉर म्यूजिक एंड आर ऑफ्टन गुड एट म्यूजिकल कंपोजिशंस एंड परफॉर्मेंस। ये तो हमें पता ही है। फिर इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है इस तरह के लोगों की? इस तरह के लोगों की जो स्ट्रेंथ होती है वो रिदम और म्यूजिक इनके लाइफ में भी होता है। ये लोग काफी रुचि लेते हैं इस चीजों में, और चेयरफुल होते हैं, और जीवन में भी संगीत को ढूंढते हैं वो, है ना, चीजों को रिदम्स में लेते हैं। तो पीपल विद म्यूजिकल इंटेलिजेंस एंजॉय सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रिकॉग्नाइज म्यूजिकल पैटर्न्स एंड टोन्स इजीली, रिमेंबर सॉन्ग्स एंड मेलोडीज, हैव अ रिच अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिकल स्ट्रक्चर, रिदम एंड नोट्स। तो ये सारी चीजें हमें पता ही है कि इन लोगों में इस तरह की चीजें होनी चाहिए। और क्या बन सकते हैं वो लोग? म्यूजिशियन, कंपोजर, सिंगर, म्यूजिक टीचर, कंडक्टर। तो कंडक्टर मतलब वो व्यक्ति जो इन सबको मिलाता हो, कंडक्ट कराता हो प्रोग्राम और ये सब कुछ। So these kind of people are very important also, and they have this musical intelligence which very few people have in this world. तो इनका भी एक अलग तरह का इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंस है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दोज हु हैव स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल। ये कंपैशनेट होते हैं इस तरह के लोग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में माहिर होंगे, और आपको सुनना और लोगों की मदद करना, बातें करना अच्छा लगता होगा। These individuals are skilled at assessing the emotions, motivations, desires and intentions of those around them. तो ये चीजें मुझे पसंद है अक्सर, और मेरे साथ होता भी है ऐसा। एंड आई एम वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स माय स्टूडेंट्स आल्सो, और उनके प्रति मैं बियॉन्ड द लिमिट्स जाकर भी कई बार काम करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसे आप में से भी कुछ लोग होंगे जरूर। और कुछ टीचर्स मैंने देखे उतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका विचार नहीं है करने का, या मदद नहीं करना चाहते, या वो अच्छे लोग नहीं है, लेकिन प्रवृत्तियां होती हैं। दीज आर सम ऑफ द स्पेसिफिकेशंस ऑफ सम पीपल हु एंजॉय इट अ लॉट। Like I have my PhD guide who is very compassionate and very helpful, while there are some very good other teachers who are not very good with behave. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब लोग हो गए, उनके नेचर का पार्ट है वैसा रहना, रिजर्व रहना। या कुछ लोगों का रिजर्व, किसी लोगों का पार्ट है कि वो ज्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, और दुख को ठीक वैसा ही फील करने लगते हैं कई बार जैसा सामने वाले को हो रहा है। तो ये एक गुण होता है जो किसी किसी में पैदा हो जाता है। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि वो इतने भावुक भी हो जाते हैं कि वो अगर किसी को सामने वाले को रोता हुआ देखते हैं तो वो भी रोने लगते हैं। और किसी सामने वाले के साथ कोई दुर्घटनाएं हो जाए तो उनको भी बहुत गहरा सदमा और दुख पहुंचाता है। तो इस तरह के लोग होते हैं, ये भी एक तरह की इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी इसको लोग कहते हैं कई बार। और ये इसकी आवश्यकता आज के जमाने में काफी ज्यादा है, क्योंकि लोग बहुत रुखे हो गए और अक्सर एक दूसरे से दूर और हटे हटे से रहते हैं। तो इस तरह के लोगों की आवश्यकता है ज्यादा, जो थोड़ा सा कंपेशन पैदा कर सके समाज में, क्योंकि हम एक दूसरे से देखकर सीखते हैं। अगर इस तरह के लोग ज्यादा होंगे तो समाज में अगर 10 हैं तो 50 लोगों पर उसका फर्क पड़ेगा, 50 है तो 500 पर फर्क पड़ेगा। इस तरह से होता है चीजें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पीपल लाइक दिस। इनकी स्ट्रेंथ्स क्या है? अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू अदर पीपल। वो लोगों से बड़ी जल्दी रिलेट कर लेते हैं और अपने दुखों का कंपैरिजन कर लेते हैं, और कई बार लोगों को अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ एलिवेट कर देते हैं और मोटिवेट कर देते हैं। तो ये एक मोटिवेटर के अंदर एक गुण सबसे इम्पोर्टेंट ये है, या अगर आप किसी ऐसे पद पर हो जहां लोगों को प्रभावित करना है, कि वो एम्पैथेटिक हो, और लोगों से जब वो बात करता हो तो उनको ऐसा फील हो कि मेरे बारे में बात हो रही। Excuse me, sir. हाँ जी, हाँ जी।
Sir, can I ask one question, sir? Of course, of Sir, course. sir, like what I feel about myself, like I'm very extremely empathetic, जी and जी but sir, लेकिन and I have a curiosity also. तो सर इस केस में सर मुझे बहुत प्रॉब्लम्स का भी फेस करना पड़ता है, जैसे कि लोग कहते हैं अरे ये तो बेवकूफी है, कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको देख के आप भी रोने लग जाओ या अपना ही सब कुछ मतलब उसको दे दो सामने वाले को। तो सर कैसे जस्टिफाई करें फिर इस सिचुएशन में, या मतलब आई हैव टू जी वर्क जी ऑन आउट ऑन माय नेचर और व्हाट। आपने कहा कि मुझसे अगर ऐसे लोगों की जरूरत है समाज में, तो सर लेकिन मुझे तो लोग बेवकूफ कहते हैं, तो फिर जी 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 जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है मैम? मनीषा जी है ना? मनीषा मनीषा वर्मा। और सर दूसरा ये कि आई एम एन एकेडमिशियन ऑल्सो, बट व्हाट आई पर्सनली फील कि मैं स्टूडेंट्स लोगों से बहुत ज्यादा मतलब पर्सनली भी अटैच हो जाती हूँ। जैसे कोई अगर परेशान है तो मुझे लगता है कि मैं उसको देखकर ना, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि उससे काउंसल करूं, या जब बिल्कुल। तक उसको वो प्रॉब्लम इरेडिकेट नहीं हो जाए ना, तो तब तक सर मुझे मतलब बेचैनी रहती है। लेकिन इन सब चीजों से फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब हैप्पीनेस तो नहीं कह सकते, इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है वो एक अलग बात है, लेकिन सोशल एलिगेशंस का सामना बहुत करना पड़ता है। जी जी मैम, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ आपको। दोनों ही बातें हैं, लगभग एक ही बात पूछी आपने कि आप जरूरत से ज्यादा आपको लगता है कि एम्पैथेटिक हो जाती हैं, और कई बार उसका आपको नुकसान भी होता है मेंटल, या फिर लोग आपको कहते हैं कि ये देखिए बड़ी ही मतलब एक तरीके से मतलब ज्यादा ही कुछ भावुक है, और ये परेशानी का सबब आपके लिए बन जाता है। तो ये आपने जो बात कही है, पहले तो आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा मैम कि आप किसके लिए जी रही हैं, अपने आप के लिए या दुनिया के लिए, है ना? देखिए ऐसा है कि अगर आप सेंट्रिक मतलब किसके सेंट्रिक आप चीजें करना चाहती हैं, अपना आपका पर्पस क्या है, तो उन चीजों को अगर आप क्लियरली सोच लेंगे दिमाग में, तो आपको लोगों की बातों से हमें परेशानी कम होगी। देखिए होता क्या है कि एक तो होता है कि गलत लोगों की गलत तरीके से मदद करना, या गलत लोगों की सही तरीके से मदद करना। एक होती है जेन्युइनली किसी को नीड है और आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, और आपको बहुत ज्यादा उसका नुकसान भी नहीं हो रहा है किसी फ्रंट पर, तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग हम यही सोचते हैं और समझना चाहिए और करना चाहिए, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर खराब भी होते हैं तो आप उसके लिए ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि कोई भी चीज एक बार आपका नुकसान कर सकती है, 2 बार कर सकती है, कोई जिंदगी भर आपको परेशान नहीं कर सकती वो चीज, है ना? आप बहुत बड़े उसको रिजल्ट सेंट्रिक उसमें ना देखें चीजों को, कि लोगों ने मुझे कहा कि मैंने ये कर दी मदद, या मैंने ये किया और मैं एम्पैथेटिक हो गई, तो ज्यादा कंपेशनेट हो गई, तो ये एक परेशानी हो गई। ऐसा नहीं सोचिए, क्योंकि होता क्या है कि आप अपने लिए जी रही हैं और आप अपने लिए जिम्मेदार हैं। हम लोगों के साथ दिक्कत क्या हो गई है आजकल, कि हम दुनिया के लाइक्स और डिसलाइक्स पर जी रहे हैं। हम लोग फेसबुक करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, या दूसरे सोशल साइट्स पर जाते हैं। हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमने 4 लाइनें लिखी तो उनको कितने लोगों ने लाइक किया, बार-बार जाकर हम चेक करते हैं। हमने एक फोटो लगाया तो हम देखते हैं बार-बार कितने लोगों ने उसको लाइक और डिसलाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया कि मैं अच्छी लग रही हूँ, अच्छी। क्योंकि हमारा जो नज़रिया है वो सेल्फ से ज़्यादा सोसाइटी सेंट्रिक हो गया है, और हम उनके हिसाब से जीने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कोई काम करने में अच्छा लग रहा है और उसमें किसी की हानि नहीं हो रही बल्कि फायदा ही हो रहा है, और अंततः आपको उससे खुशी मिल रही है, तो वो काम गलत हो ही नहीं सकता। हमारे अंदर एक बड़ा अच्छा सेंसर लगा हुआ है सभी के अंदर, और बताने की जरूरत नहीं होती कि वो हमें आसानी से बता देता है कि जो चीजें करते हुए आपको दुख हो, पछतावा हो, शर्म आए, वो खराब होती है। जिनको करते हुए आपको गर्व फील हो, जिनको करते हुए आपको अच्छा फील हो, जिनको करते हुए किसी का अच्छा हो रहा हो, वो आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकती चीज़ें, है ना? और अगर आपको शर्म आ रही है कोई काम करने में, पछतावा हो रहा है और आपको गिल्ट फील हो रहा है, और ये हो रहा है कि किसी को पता चल गया तो क्या होगा? इसमें ये और जोड़ दीजिए। तो वो काम गलत है, और अगर इन 4-5 कैटेगरी से बाहर वो काम है, तो वो अच्छा ही काम होगा निश्चित रूप से, और आप बेझिझक निडर होकर उसको करें। क्योंकि आपको एप्रिसिएशन इसलिए नहीं करते लोग, क्योंकि आप उनसे अलग हैं एक तो। उनके ऊपर भी एक नैतिक ज़िम्मेदारी आ जाती है कि हम भी कुछ वैसा करें। आप मेरी बात को समझिए।
ठीक है, क्योंकि वो वैसा नहीं कर पा रहे हैं और उनके अंदर की एक ईर्ष्या है, वो आपसे कहती है अरे ये ऐसा कैसे करके महान हो सकती है। कहीं ना कहीं हम इसको सबोटाज करें या रोकें तो उसका तरीका ये हो सकता है कि ये बोलेंगे भाई तुम तो बेवकूफ बन गए, है ना, तुम्हारा तो ये हानि हो गई। तो ये बहुत छोटी चीजें हैं, और हानि हो भी जाए, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, हानि कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी बार हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको करने के बाद क्या फील हुआ, है ना। वो आपने अच्छा किया या आउट ऑफ द वे जाके कुछ किया, तो वो आपको अंदर से अच्छा लग रहा, भले आप ये भी मत सोचिए कि उसका कुछ फायदा होगा आपको, या आपके ऊपर कहीं वो अकाउंट में ऐड हो रहा है, ऐसा भी मत सोचिए। आप सोचिए कि मुझे अच्छा लगा, बात खत्म हो गई, है ना। नेकी कर दरिया में डाल, वो वाला एटीट्यूड होना चाहिए। ये कहने में बड़ी आसान सी कहावत है और ये वो है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो काम खराब नहीं हो सकता, है ना। इस मामले में अगर आपको किसी का हेल्प करते हुए अच्छा लग रहा है, दुनिया कुछ भी कहती रहे, वो काम खराब नहीं हो सकता। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं चीजों को। वो कैसे कर सकते हैं कि आप एक हद से ज्यादा आपने नुकसान ना होने दें, ये आप कर सकते हैं। किसी मामले में अगर आपका कोई आर्थिक नुकसान हो रहा है, कुछ मानसिक रूप से आप प्रताड़ित हो रही हैं, इस तरह की चीजें ना होने दें। उसके लिए फिर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस होने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का भी उसमें तालमेल होने की जरूरत है। जैसे आप एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कोई बच्चा है क्लास में और वास्तव में वो गरीब है, उसके पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, और आपने चुपचाप उसकी मदद कर दी बिना किसी को बताए। और कुछ लोग आपको बाद में ये कह सकते हैं कि बड़ा बच्चा, उसको तो स्कॉलरशिप भी मिली थी लेकिन उसने आपसे फिर भी फीस लेके अपनी फीस भर दी। तो आपको एक बार को बुरा लगेगा कि उस बच्चे ने मुझे बताया नहीं, है ना। लेकिन आपके एक मन में ये भी सवाल आना चाहिए कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, जो मुझे उस समय ठीक लगा। वो बच्चा क्या कर रहा है, उसकी क्या उम्र है, या वो आगे जाके क्या करेगा, वो एक अलग मसला है। आप हर चीज को उस तरीके से एनालाइज ना करें। मतलब ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी रियल लाइफ में हो सकते हैं कि आपके छोटे भाई बहनों ने आपकी मदद ली, बड़ों ने मदद ली, लेकिन समय पर आपकी मदद नहीं की। लेकिन आपने अपना कर्तव्य पूरा किया ना। अब वो गलती कर रहे हैं, क्या आप भी वो गलती करना चाहते थे? उनकी हेल्प ना करके क्या आप भी वो गलती करना चाहते थे? आपने तो मौका दिया ना उनकी हेल्प करके उनको। तो इस तरीके के मौके आपके जीवन में बहुत आएंगे, बट इट इज अप टू यू, आप किस खेमे में रहना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, है ना। और आप रिजल्ट सेंट्रिक मत बनिए। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम रिजल्ट सेंट्रिक, हम जो भी करते हैं उसका हम लोग फल चाहते हैं, है ना। हम लोग ये नहीं देखते कि हमें जो अच्छा लगा वो भी तो एक फल था, दैट वाज आल्सो a result. We do not consider that, so we should try to consider that result also. तो यही मेरा कहने का, दोनों सवाल शायद आपके इसमें आ Yes, गए होंगे। sir. Yes. Thank you, sir. Thank you. हाँ, तो मेरा यही कहने का मतलब था आपसे कि आप रिजल्ट सेंट्रिक ना बने, और रिजल्ट तो वही है कि आपको अच्छा लगा, वही सबसे बड़ा रिजल्ट था। No, I'm not, sir. Result centric में नहीं हूँ. Like in some situations, I like give some financial aids also. लेकिन उसको कभी मैंने वापस लिया ही नहीं यहाँ जी तक, जी जी ऐसा हुआ। तो मुझे ऐसा फर्क ही नहीं पड़ता कि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मेरे पास थे तो मैंने दे दिए, इट्स ओके। जी जी बट जी द थिंग इज कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी को ये बात पता चलती है या जो भी है, तो फिर वहां पे फिर ये आता है कि अरे ऐसे करते रहोगे तो कैसे चलेगा, ये वो। तो थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि आप कुछ अलग हटके कर रहे हो, तो वो एक एलिगेशन का पार्ट बन गए, या बिकॉज वी ऑल्सो लिव इन द सोसाइटी। सो इसीलिए सर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि मैं पूछूं। जी जी। नहीं, आपने सही किया बिल्कुल। तो मैम इसका जवाब एक तो ये भी था जो मैंने बताया, दूसरा ये भी है कि मॉनिटरिंग थोड़ी सी कर ले, मतलब थोड़ा सा लोगों को पहचान ले जो वास्तव में दुष्ट है, मतलब जो वास्तव में थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करें उनकी अपनी वैसी इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से। जो वास्तव में दुष्ट है उनसे थोड़ा सा दूर रहें। लेकिन कई बार लोग मजबूर भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, और वो वापस आपका नहीं कर पाते, वैसे भी केसेस हैं, उनको भी समझें। दो हर मतलब आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में बैलेंस होना चाहिए थोड़ा सा। और फिर आपसे अगर उसके बावजूद भी गलती होती है तो आपको परेशान नहीं होना, आपको ये सोचना है कि ये तो मुझे करना ही था, और ये तो मैंने अपने लिए किया था क्योंकि मुझे अच्छा फील हो रहा था, है ना। ठीक है। तो बहुत सारे लोग असल में ये कहते हैं कि भिक्षा देना, ये भीख देना बहुत गलत काम है, जो कि कई मामलों में है भी गलत। लेकिन अगर वो लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो किसी संगठन से जुड़े हैं, या उस पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो वो गलती कर रहे हैं। आपने तो उस समय आपको कंपैशन फील हुआ था किसी के बच्चे को हाथ में मतलब बच्चे को किसी औरत के हाथ में देखकर, जिसको देखकर ये लग रहा था कि अमीर तो कम से कम वो नहीं होगा, दूध तो उसको शायद नहीं ही मिलता होगा। तो
आपने तो अपने कंपेशन की वजह से किसी की हेल्प की। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। आई एम नॉट सेइंग कि आपको भिक्षा देनी चाहिए या नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको उस समय जो फील हुआ आपने वो किया। अब अगला आदमी अगर वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसकी गलती है ना, आपने अपने पार्ट से वो काम ठीक कर दिया। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। तो इस तरीके से हमें चीजों को थोड़ा बहुत मॉनिटर करना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और ये जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके बीच में अगर आप बैलेंस बनाएंगे तो आपको नुकसान भी कम होगा और अपने ये मनपसंद काम भी आप करती रहेंगी। और मतलब इस तरह का भी आप कुछ बड़ा काम कर सकती हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे, मतलब जब आप और भी ज्यादा मतलब बड़े मकाम पर पहुंचे कि आप कोई ऐसी संस्था में जुड़ जाए, संस्था यस बनाएं। सर, एक एग्जांपल है, व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ एचआर मैनेजर सर, तो वहां पर मैंने एक जो पियन था उसकी हेल्प की थी कि मैंने उसको सैलरी थोड़ा जल्दी दिलवा दिया, इसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। ऐसे 2-3 एम्प्लॉइज थे। बट सर इमोशनल इंटेलिजेंस मैं मानती हूँ कि इट्स अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट और इसको फॉलो करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल अगर आप कॉर्पोरेट्स की अगर बात करें तो हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस लीडर्स की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, यू नो, इन ईच एंड एवरी सेक्टर इट इज वेरी रिक्वायर्ड। बट जब उसको प्रैक्टिकल टर्म्स पे सर जब हम करना चालू करते हैं ना तो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। दैट इज प्रैक्टिकल, बिकॉज मैनेजमेंट क्या कहता है ना, यू हैव टू डू, मतलब आपको अपना काम करवाना है एनी हाउ। एंड प्रॉफिट की जहाँ बात आ जाती है तो सर वो ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, वहां बिजनेस हो जाता है, तो वहां सर ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस वाले जो लीडर्स हैं वो मैं मानती हूँ कि दे आर वेरी सक्सेसफुल इन मेकिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, लेकिन अगर उनके क्लैशेस भी सर बहुत ज्यादा होते हैं सीनियर मैनेजमेंट वाले लोगों से। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग अभी फिर से वही देख रहे हैं ना, कि हम लोग ये देख रहे हैं कि वो सक्सेसफुल बाहर की दुनिया में ज्यादा दिख रहे हैं, ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और ज्यादा बड़ी गाड़ियां हैं उनके पास, जो इस पर ध्यान कम दे रहे हैं। लेकिन फिर वही हम लोग तो इस क्लास में या इस समय में जो हमारी नीड है वो ये है कि हम सुकून और शांति की खोज में भी हैं कि नहीं साथ साथ। देखिए संसाधन और भौतिकवाद की खोज में तो है ही है हम लोग, उसमें भी बैलेंस चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं चाहिए हमें। लेकिन फिर वही बात है कि इंटरपर्सनल बनाने के साथ साथ कहीं ना कहीं सुकून भी या आया, इन दैट शांति टर्म भी सर आया। वो बहुत, हाँ हाँ। वो बहुत ब्लिसफुल लगता है, वो बहुत हैप्पी मोमेंट लगता है कि कोई बात नहीं, दुनिया को जो भी लग रहा है लेकिन ठीक है, वो बहुत सुकून देने वाली चीज हुई मतलब। जी जी, एक एक मैं आज सुबह ही व्हाट्सएप पर एक वो पढ़ रहा था, एक लतीफा था जिसमें मतलब एक कंपैरिजन थी जिसमें लिखा था कि मतलब मुकेश अंबानी जी ने रात को मूंग की दाल से जिसमें बहुत कम नमक था 2 रोटी खाई, और उसके बाद वो लेट गए और उन्होंने फिर बीपी की और शुगर की दवाई ली, बहुत अच्छे चांदी और सोने के बर्तन में उन्होंने खाना खाया, बहुत अच्छे बेड पर वो लेटे, लेकिन रात भर उनको नींद नहीं आई। फिर ऐसा ही एक उसी समय पर मुकेश अंबानी की उम्र हो सकती है 60 के आसपास होगी, इसी तरीके से गांव में बैठा हुआ एक व्यक्ति है और उसने बहुत अच्छी पूरी और छोले की सब्जी खाई, अचार भी खाया और उसने दही भी खाई और बहुत गहरी नींद से वो सोया। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा जीवन बहुत अच्छा है? आप सर देखिए डेफिनेटली तो जो गांव वाला व्यक्ति है ऑब्वियसली इसका बिल्कुल, जीवन। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमें बार बार अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें चाहिए, हमें अच्छा घर भी चाहिए, हमें ये नहीं कह रहा, हमें अच्छी गाड़ी भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। लेकिन अगर हमने विवेक शून्य हो गए हम लोग, हमारी आत्मा मर गई, तो उन चीजों का इंपॉर्टेंस बहुत कम हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। या हम लोग बीमार हो जाएंगे, हमें नींद नहीं आएगी और हम इतना ज्यादा पीछे भागने लगेंगे चीजों के कि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारी दुनिया से सुख चैन कब निकल गया, हमने कब उसको खो दिया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको साथ साथ बनाए रखना है। उसके साथ साथ फिर आपके पास चाहे भौतिक आवश्यकताएं भी ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अंदर से चिंतनशील है, अंदर से विवेकशील है, आपके अंदर दया भाव है, एम्पैथी है, तो आप कभी भी आपको नींद शायद नहीं जाएगी आपकी। अगर ये गुण आपके अंदर होंगे तो वो आपको बचाए रखेंगे। क्योंकि कहीं देखिए इसमें बहुत सारी डिबेट्स हैं, बहस हैं। एक सुखवाद एक थ्योरी होती है और एक दुखवाद है। जो दुखवादी लोग हैं वो कहते हैं कि सुख के बारे में सोचना ही अपराध है ना, तो वो बड़े ही मनहूस तरह की सोच वाले इस तरह की लोग भी होते हैं। तो बहुत सारे जब आप दृष्टिकोणों में जाएंगे तो बहुत अंतर भी मिलेगा आपको, बहुत सारी चीजें भी होंगी। लेकिन मैं फिलहाल अगर मोटे तौर पर हम बात करें तो यही पाते हैं
कि आप अपने मन में जो अच्छी लग रही हैं चीजें और जो वास्तव में जिनको करने से आपको कोई दुख नहीं हो रहा, कोई शर्म नहीं आ रही और आपको किसी से कुछ छुपाना नहीं पड़ रहा, है ना, और जिसमें पकड़े जाने का डर नहीं है, ये 4-5 जो चीजें हैं अगर आप इनको ध्यान रखते हुए करते हैं तो वास्तव में वो काम अच्छा ही होगा। और इनका अगर उल्टा है जस्ट तो वो काम खराब ही होगा। हमेशा अगर आप इन चीजों को थोड़ा बहुत अपनाने की, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको जरूर राहत मिलेगी। और रिजल्ट सेंट्रिक ना बने, हमेशा आप उम्मीद ना रखें। जब भी आप किसी से कुछ कर रहे हो, महात्मा बुद्ध ने यही कहा है कि हमारी जो उम्मीदें हैं वो हमारे दुख का कारण है। अगर हम अपनी उम्मीदों को कम कर लें कि हमने जो किया तो कर दिया बस, वापस से आएगा या नहीं आएगा इससे कोई मतलब नहीं है हमको, वो आ जाएगा तो वो सरप्लस है, और नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है, तो आपकी परेशानी आपको हमेशा कम होगी। तो थोड़ा आगे चलते हैं, हम लोग आउट ऑफ टाइम जा रहे हैं और फिर इसको जल्दी से खत्म कर देते हैं फिर, सो दैट कि आगे फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। तो ये जो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले लोग, आपने बता ही दिया पूरा कहानी कि इन एक क्रिएट पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर, रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन ग्रुप सेटिंग, इस तरह के लोग होते हैं काफी, मतलब इस तरह के मामलों में बड़े अच्छे होते हैं, कोर्डियल होते हैं लोग। और अक्सर इनके मन में कोई ज्यादा वो नहीं होता, चालाकी, मतलब ये सीधे तौर पर अपने काम करते हैं, करवाते हैं। कई बार इसका, जैसे कि मैम ने बताया, इसकी वजह से कई बार परेशानी भी सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, गहन उसमें देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आपको अंदर से जरूर खुशी होगी। भले ही आपको दूसरे को लग रहा होगा कि मैंने इसके 10 रुपए का नुकसान कर दिया या मैंने इससे फायदा उठा लिया, तो वो उसकी सोच है। आपकी सोच क्या है, आपको उस पर ध्यान केंद्रित ज्यादा करना है। ठीक है, तो इस तरह के लोग क्या बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि उनमें एक साइकोलॉजी समझने की समझ क्षमता ज्यादा होती है, एम्पैथेटिक होते हैं ना, दूसरों की बातें समझते हैं जल्दी से। और फिलोसोफर्स अच्छे हो सकते हैं। फिलोसोफर का क्या होता है कि वो ऊंची बातें सोचता है, वो घर परिवार की बातें से उठ चुका होता है उसका मन, मतलब होता है उसमें भी, लेकिन उससे ऊपर का सोचना वो सीख जाता है जब फिलोसोफर होता है। और काउंसलर अच्छा बन सकता है, उन आपको अच्छी बातें बता सकता है, एडवाइस अच्छी दे सकते हैं। सेल्स पर्सन, इस तरह के लोग, क्योंकि कन्विंसिंग पावर अच्छी हो जाती है, तो सेल्स पर्सन आप अच्छे बन सकते हो। वो पॉलिटिशियन को भी कन्विंस करना पड़ता है, आपको पता है, और भाषण भी देने पड़ते हैं, तो पॉलिटिशियन अच्छा बन सकता है। फिर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, और individuals who are strong in interpersonal intelligence are good at being aware of their own emotional states, feelings and motivations. They tend to enjoy self reflections and analysis, including daydreaming, exploring relationships with others and assessing their personal strength. तो इस तरह के लोग होते हैं जो बाहर और अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, और इंट्रोस्पेक्शन करना इनको आता है, और अपने आप पर भी सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं। इस तरह के लोगों में एक खास खूबी ये होती है कि बाहर निकलकर अपने आप को देख पाते हैं, मतलब हम लोग क्या हैं, तीसरे की नजर से हम लोग कैसे हैं, वो सब चीज देखना आता है। और इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एनालाइज कर लेते हैं, स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को, और एंजॉय एनालाइजिंग थ्योरीज एंड आइडियाज, इस तरह की चीजों में रुचि होती है उनकी। हैव एक्सीलेंट सेल्फ अवेयरनेस, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने हम क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस बहुत होती है इनमें। हमको कौन सी लैंग्वेज आती है, हम किस शब्द का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, क्या हम बीच में कोई गलत शब्द तो नहीं बोलते, इस तरह की उनको नॉलेज या समझ बेहतर होती है। अंडरस्टैंड द बेसिस फॉर हिज और हर ओन मोटिवेशंस एंड फीलिंग्स, मोटिवेशंस और फीलिंग्स के बारे में उनको पता होता है। तो आप ये सोचिए कि ये सारे के सारे गुण हम सबके अंदर हैं, लेकिन कोई गुण बहुत ज्यादा है और कोई गुण बहुत कम है, और कोई गुण बहुत ही मध्यम उसमें है। तो पोटेंशियल करियर चॉइस कौन कौन सी हो सकती है, इनमें फिलोसफर हो सकता है, राइटर, थ्योरिस्ट, साइंटिस्ट वगैरह वगैरह। तो लास्ट जो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इस तरह के लोगों को प्रकृति बहुत पसंद होती है, और ये जो है पढ़ ही लेते हैं चलो। नेचुरलिस्टिक इज द मोस्ट रिसेंट एडिशन ऑफ गार्डनर्स थ्योरी एंड हैज बीन मेट विद मोर रेसिस्टेंस देन हिज ओरिजिनल 7 इंटेलिजेंस, मतलब बड़ी मुश्किल से इसको जोड़ा गया, रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ा। अकॉर्डिंग टू गार्डनर, इंडिविजुअल्स हु आर हाई इन द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आर मोर इन टाइम with nature and are often interested in nurturing, exploring environment and learning about other species. कुछ दोस्त होंगे आपके, और आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, नेचर में रहना बहुत ज्यादा पसंद होगा, पहाड़ों पर जाना पसंद होगा, सी और इस तरह की जगह देखना पसंद होगा, और एनवायरनमेंट के साथ सिंक रहते होंगे लोग, यानी कि उनको मौसम बदलना और अच्छा लगता होगा, उसको एंजॉय करते होंगे, अलग अलग तरह के फलों में उनकी रुचि होगी, पत्तियों में, पौधों में।
तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो भी एक तरह की इंटेलिजेंस होती है जो कि सब में नहीं होती। ये उन्होंने बताया। इन लोगों की स्ट्रेंथ ये है, फाइंडिंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स टू नेचर, नेचर के प्रति आकर्षित होते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको कहा कि ये इतने आवश्यक इंटेलिजेंस नहीं है और ये एक अलग चीज नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये भी एक अलग तरह की इंटेलिजेंस है जो कि सब में नहीं होती और इसको भी एक अलग श्रेणी में रखना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन लोगों की? They are interested in subjects such as botany, biology and zoology, categorize and catalog information easily। तो मतलब ये इनको श्रेणीबद्ध करना आता है चीजें, और बायोलॉजी और इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं जो नेचर से रिलेटेड हैं उनमें इनकी बहुत रुचि रहती है। Enjoying camping, gardening, hiking and exploring the outdoors, dislikes learning unfamiliar topics that have no connection to nature। इनकी पसंद ऐसी होती है। तो एक नई तरह के लोग आपने सुने होंगे, वेगन आजकल आ रहे हैं जो कहते हैं कि पूरे वेजिटेरियन इज्म से भी आगे हैं और वो दूध के प्रोडक्ट भी यूज नहीं करते। तो इस तरह के जो लोग हैं वो नेचर को मतलब बहुत ज्यादा एम्ब्रेस करते हैं। आपको पता है कुछ लोग बहुत बड़े पेट लवर होते हैं और वो इतना ज्यादा दुखी होते हैं पेट को कुछ हो जाए तो, जितना वो इंसानों से भी नहीं होते। तो इस तरह की भी एक इंटेलिजेंस होती है। वो इमोशनल इंटेलिजेंस से भी थोड़ी अलग है। वो पेट के प्रति ज्यादा होती है या अपने जानवरों के प्रति या अपने नेचर के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, है ना। तो पोटेंशियल करियर चॉइस इन लोगों की बायोलॉजिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट, गार्डनर, फार्मर, इस तरह के लोग ज्यादा होते हैं। आपको पता है फार्मर जमीन को छूकर माथे पर लगाकर जब जाके फील्ड में जाते हैं तो वो एक माता वाला भाव, जो उनके अंदर माँ वाला भाव होता है, तो वो नेचुरल उनमें पैदा हो जाता है कई लोगों में। तो इस तरह के लोग भी हैं और नेचर लवर होते हैं लोग अक्सर। तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टुडेज क्लास इज दैट there are several kinds of intelligence and Gardner has told about the 8 of them, and all of us have some kind of intelligence in us, and almost every kind of intelligence is there in us. Some is in the abundance and some is in a very less amount. ये हमारे ऊपर है, हमें अपने आप को पहचाने कि कौन सी इंटेलिजेंस हमारे अंदर सबसे ज्यादा है, नेचुरली ज्यादा है। कुछ को बढ़ाया जा सकता है और कुछ को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। तो जो इंटेलिजेंस हमारे अंदर नेचुरली है, अगर हम उस फील्ड में काम करते हैं तो वी कैन बी मोर हैप्पी, वी कैन बी मोर सक्सेसफुल एंड वी कैन कंट्रीब्यूट। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज वी कैन कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। क्योंकि जो चीज हमें नेचुरली आती है हम उसमें कुछ नया भी कर सकते, कंट्रीब्यूट भी बेहतर कर सकते। तो ये आज की क्लास का सार था और थोड़ी लंबी हो गई क्लास उसके लिए, लेकिन आप लोगों से इंटरेक्शन हुआ, बात हुई, बहुत अच्छा लगा और हमारा बातें भी लगभग पूरी हो गई। तो आज की क्लास में यही सब उद्देश्य था और उसको जब आप हैप्पीनेस से जोड़ेंगे तो आप यही पाएंगे कि इंटेलिजेंस चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके विवेक का, आपकी बुद्धि का। और विवेक वहीं पर आ जाता है जहां पर कोई नेचुरल थ्योरी या कॉन्सेप्ट काम ना कर रहा हो, वहां पर आप विवेक से काम लेते हो। और विवेक आपको उस समय डिसीजन जो आपका बेस्ट करवाता है, वो विवेक, जिसको समझ भी कहते हैं, एक समझ पैदा हो जाती है अनुभव के साथ, वही इंपॉर्टेंट होती है। तो जीवन जीने के लिए इंटेलिजेंस के साथ साथ ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं और किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं और फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं। Thank you so much, Vikas sir, for such an interactive and informative session. If anyone has any doubts, please you can go ahead and share your doubts. Okay. Okay. So I think there is no one now. So it has been a great, pleasure to interact with you all, and we will meet soon. I hope you liked the session, or please write down anything if you want to. There could be some feedbacks, or there could be some suggestions, and anything else you would like to mention. Thank you so much. Sir, Thank you so much, everyone. जी, हाँ जी, हाँ जी। सर एक कुछ थोड़ा सा और हम डिस्कशन चाहेंगे, अगर कभी नेक्स्ट किसी लेक्चर में आप इंक्लूड करें। आज मतलब जो कुछ भी डाउट थे आप साथ साथ क्लियर भी करते चले आ रहे थे और पार्टिसिपेंट्स ने पूछा तो वहां भी हमारे डाउट्स क्लियर हो गए। बट एक लास्ट लेक्चर मैंने आपका सुना था
जिसमें आपने बात करी थी कि कैसे हम किसी ज्योग्राफिकल रीजन से हैं तो वो हमारे डिसीजन मेकिंग या हमारे नेचर को या हमारे इमोशंस को अफेक्ट करता है, तरह तरह से आपने इंटर रिलेट किया था। तो जी 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 उस पर थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहेंगे जी जी जैसे कि किस तरीके से हमारे स्पेसिफिकली ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हमारे इमोशंस को या डिसीजन मेकिंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं। जी और मुझे सर मैं थोड़ा सा लिटरेचर कीजिएगा कि अगर हम इस चीज को पढ़ने में और इंटरेस्टेड हैं तो हम कहाँ से हमें कुछ अच्छा रेफरेंस मुझे दीजिएगा। ओके मैम। सो अभी इस बारे में डिस्कस करेंगे या आप अगली क्लास में करना चाहते हैं? आप मुझे अभी तो मुझे लग रहा है कभी भी आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए आए। ओके मैं नेक्स्ट जी मैम, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा उसमें पहले हम लोग 15-20 मिनट 10 मिनट इस पर ही बात करेंगे और आपको मैं निश्चित रूप से कोई किताब भी बता दूंगा इस पर, तो जरूर इसको हम इंक्लूड करेंगे जी। थैंक यू सो मच सर। मैं लास्ट क्लास में भी पढ़ने वाली थी, मैंने चैट पर लिखा बट जब तक शायद सेशन ओवर हो गया था। ओके 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 सॉरी, मैं देख नहीं पाया हूँ जी। ठीक है मैम, अगली क्लास में इसको हम लोग पहले से ही इंक्लूड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।